Okay. So in last class we have started database management system. Okay. And few commands like creating database, how to create a database. Okay. How to create a database, how to create a table, how to create how to insert values into the table. Okay, distinct functions we have already studied. How to run a query, like select how to use a star in a query, distinct in a query, different columns, name and query. Okay, and function like addition value in a column. Okay, so now we are going to start with condition. Okay, how to start a condition, how to insert values in it. Okay, so let's start. I have already explained these things, that how to use a where clause in a table. Okay, so that also I have told you. Okay, now today I'm going to tell you between in functions. Okay, तो सबसे पहले I will tell you, okay, we will use where clause at the place of between. Okay, between is a short that in that case you will not use any operator like less than, greater than. Okay, for that purpose we have to, like, suppose that first of all we'll access into data. Now see, show databases. Okay, these are the databases which we have already created. So we'll go to UG1 database changed, show tables. In data, when you will work on SQL, MySQL command line, at that time not any changes you will do, that will change at the on the spot, and it will save automatically. Okay, so like suppose that if I will say DESTTV1, now this is the structure of a table which we have created. Okay, now check what values we have already inserted in it. Select star from TV1. Okay, these are the values which we have already inserted. Okay, so now we will work on these values. Like I have explained that when you will use any query, how to use between or how to use in. Okay, so these two things first of all I will tell you. Okay, so suppose that I want to work between and in will work on न्यूमेरिक वैल्यूज. ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज पे हम इससे काम करते हैं. तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे,
we will use select star from tb1 where empid between 880 oh गलत हो गया from tb1 हो गया where empid between 800 882 and 885. Now see, table is here. The values which we have given between 880 to 885, these are here. Now in this case, suppose that I want to, I don't want all columns, I want just two columns, so I will use empid comma city. Okay. Now it will come accordingly empid. Same as if I will say in at the place of between, then in I will use bracket and then comma between two values. Now see, only two values will display at the time of execution, because there the values between both values also count and between also count. Okay, but here only the similar values will count as values. ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, नाउ अब हम लोग थोड़ा सर्चिंग पे काम करेंगे. ठीक है, we'll use like function, like method. इसको बहुत अच्छे से समझना. Suppose that I want to search any value in, like here this pattern. So two characters we will use for any alphabet or any character. One is percent and one is underscore. Percent represent multiple characters in a length, in a string. Okay, एक सब स्ट्रिंग में, या फिर आप कह सकते हो एक सेंटेंस में, एक उसमें percent means multiple characters. Like suppose that my name is Gaurav. So if I know I forgot my name, मेरी याददाश्त चली गई, then I will search कि हो सकता है मुझे इतना याद रह गया कि मेरी लास्ट में नेम के लास्ट में AV था. ठीक है, then what you will use, हम परसेंट लिखेंगे और लिख देंगे AV. इसका मतलब क्या होगा कि the whatever the characters are before AV will display. Same as suppose that ऐसा भी हो सकता है कि हम बाकी सब याद रहा, हमें G और A भूल गया मैं. पूरा मेरा नाम था लेकिन इसके पहले का नहीं याद आ रहा, लेकिन मुझे याद है कि दो कैरेक्टर्स थे. ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 अंडरस्कोर्स आई विल यूज. सेम एज हमने कहा जैसे एयर होता है. ठीक है, हमने कहा आर होता है, एयर होता है, हवा का मतलब क्या होता है. तो इन दैट केस हमने क्या कहा, मैं याद नहीं है, स्पेलिंग नहीं याद, हमने ऐसा सोचा कि AR. ठीक है, बीच का कैरेक्टर में याद नहीं है, तो दैट विल वर्क एज अ क्वेश्चन मार्क कि जितने भी इस टाइप के वर्ड्स होंगे, कोरिलेटेड वर्ड्स होंगे, दैट यू कैन फाइंड. क्लियर?
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखो दिया गया है कि A%, सेम एज अगर हमने कहा कि लाइक फंक्शन हम यूज करते हैं और हमें याद है जैसे मिडिल नेम हमारा कुमार है, ठीक है, हमें स्टार्टिंग का नाम नहीं पता और एंड का नाम नहीं पता, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कुमार डालेंगे, जितने भी कुमार वाले वर्ड्स होंगे वो। सेम एज हमने ऐसा भी कंडीशन के साथ भी लगा सकते हैं कि भाई किसी 3 लोग, कोई देयर आर 3 पर्सन, हम कोई भी हैं जो ऐसे लोग जिनकी आईडी 8 से स्टार्ट होती हो या 830 हो और उनका नाम कुमार हो, मतलब उनके नाम में कुमार हो, ऐसा भी मल्टीपल कंडीशंस वी कैन यूज इन बिटवीन। So let's see how we will use in these values in program in query. See, अब सपोज दैट ये है, ठीक है, अब इसमें लाल सबके नाम के आगे, कुछ नाम के से आगे लाल लगा है, कुछ के नाम से आगे आनी लगा है, जैसे रमानी, सीतारमन, सीतामणि, ठीक है, श्रीलाल, रायलाल, राधेलाल, श्यामलाल। अब हम सोचते हैं, हमने सोचा कि चलो हम ऐसे नाम ढूंढते हैं इनके आगे लाल लगा है, तो मैं लिखा सेलेक्ट वेयर नेम लाइक, ठीक है, ऐसे ई नेम लाइक, सॉरी, ई नेम लाइक % लाल, ठीक है, देखो केवल लाल वाले नाम आ गए, पीले वाले एक भी नहीं आए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो नेम्स हैं फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उधर हमने कहा कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए जिनके नाम R से स्टार्ट होते हों, ठीक है, तो यहाँ पे देखो केवल 4 नेम आ गए, ठीक है, समझा। अब हमें ऐसा भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि जिनके नाम में AN आया हो स्टार्टिंग में और कहीं भी किसी भी जगह पर, ठीक है, तो यहाँ पे 2 नाम आ गए, समझा, आया समझ में सबको? ओके, नाउ सपोज हमें कुछ याद तो है कि लास्ट में 2 नाम ऐसे हैं जिनका नाम स्टार्टिंग में तो राम है, आगे के 3 कैरेक्टर्स हैं हमें पता नहीं, रामलाल, रमानी, ना, underscore will use for single character, one underscore is equal to 1 character, and like and percentage symbol will use for what, multiple characters, ठीक है। अगर हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स को डिफाइन करना है देन वी विल यूज फॉर लाइक, वी यूज लाइक फंक्शन, ठीक है, और ना 12th वाले बहुत ध्यान से करें, पढ़ें इस चीज को, ये बहुत आता है एक बार, ठीक है। अगला फंक्शन है नल। सबसे पहली चीज, वैल्यू नल कब होगी, जब वैल्यू हमारी ब्लैंक जाएगी, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नल हम जब इंसर्ट करते हैं तो एट दैट टाइम हम वैल्यू सपोज दैट इंसर्ट कर रहे हैं
तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा सपोजिट वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू क्या नाम था टेबल का, TB1 वैल्यू, ठीक। तो इसमें डाला 879, ये तो पढ़ चुका है, 890, इसका यूनिक आईडी हो गया, रामलाल नहीं डालो, तो हो चुका है। चलो घनश्याम डालते हैं, ठीक है, और फिर नल, ठीक है। हमने इनके सिटी नहीं डाला, ठीक। अब अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो इस तरीके से आएगा, देखो ये नल पड़ गया, ठीक है, समझा। अब हमें इसे ढूंढना है कि इसमें नल वैल्यूज कितनी है, ठीक है। नल वैल्यूज नथिंग, अभी ये देखो नल तो सिटी है नहीं, उसको हमने सिंगल कोट में भी नहीं किया, बट इट हैज टेकन। अगर हम कोई और इसकी जगह अगर हम कहाँ वैल्यू डाली थी, ये वैल्यू डाली हमने, इसकी जगह भी हम कुछ और डाले, सपोज हमने डाला 12 बंकी, ठीक है। अब अगर हम इसको सिंगल कोट नहीं करेंगे इट विल गिव द एरर, बट नल को ऐसा कुछ नहीं किया, रीजन बिहाइंड नल इज द डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। हाँ नहीं, बाद में जाएगा, समझ में आया, ठीक है। अब हमें नल वैल्यू ढूंढनी कैसी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेरी हमने दी है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज नल, ठीक है। यहाँ पे सिटी जो है इज नल है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, है ना। नाउ अगर स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज नॉट नल, ठीक है। तो जितनी इन दोनों केसेस में फर्क क्या होगा कि यहाँ पे जो दोनों वैल्यू होंगी इज नल और इज नल इज नॉट नल, दोनों में फर्क ये होगा कि व्हेन यू विल डिस्प्ले, व्हेन यू विल एग्जीक्यूट द क्वेरी, तो ये वाला ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज नल, इट विल गिव द वैल्यू दोज हु हैव नल, है ना, एंड दोज हु हैव नल। इफ सेकेंडरी इफ इन इज नॉट नल अगर हम यूज करते हैं तो सारी वैल्यूज वो देगा जिनमें वैल्यूज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, सॉरी मतलब आपने डाली हुई है, ब्लैंक नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकेंड चीज देखो, देख लेते हैं, फिर हम इसका क्वेरी बताते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज मतलब ऑर्डर बाय मतलब ऑर्डर किस अकॉर्डिंग किया जाए। हम किसी भी टेबल को अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द वन कॉलम, ठीक है, एक कॉलम के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि सारे कॉलम्स को हम एक बार में ऑर्डर कर सकते हैं, नो, विल यूज वन कॉलम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वन कॉलम, पूरी टेबल को हम एक कॉलम के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करके करेंगे, ठीक है। ऑर्डर बाय कैसे यूज होता है तो बताते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग पता है सभी को, यू नो अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, आई थिंक एवरीबॉडी नोज। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का मतलब होता है कि हमारे पास हम किस ऑर्डर में लगाते हैं। असेंडिंग मतलब इन अकॉर्डिंग टू ए टू जेड, या कह सकते हो, या फिर 1 2 1 2 3 4 5, एंड डिसेंडिंग मीन्स रिवर्स ऑर्डर, मतलब Z to A या फिर 10 to 1 लाइक दिस, ठीक है। बट if you will use ascending order or descending order,
ठीक है, अगर आप असेंडिंग यूज करते हो तो इट इज बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर आप असेंडिंग यूज कर रहे हो, इफ यू विल यूज असेंडिंग ऑर्डर देन इट इज अ बाय डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब उसके लिए आपको कुछ नहीं यूज करना। बट इफ यू वांट टू चेंज ऑर्डर इन अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग देन, ठीक है, देन वी विल यूज DESC। ओके, मेथड फंक्शन या कह सकते हो कमांड टू क्रिएट इट। अब कैसे लिखते हैं इसको, हम पहले लिखते हैं सेलेक्ट, वही सेम थिंग, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अब लगाएंगे ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय एंड देन सिटी। सपोज अब यहाँ सिटी इसके आगे कुछ नहीं लगा, दैट मीन्स इट विल वर्क एज अ डिसेंडिंग, बट हियर इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग। ठीक है, सिटी डिसेंडिंग। अब DESC लगाया तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, इट इज द ऑर्डर इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, हम फिर फंक्शंस मेथड मर्ज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा सेलेक्ट नेम, हमें फाइंड करना है, नेम प्रिंट करना है, देन फादर नेम, सिटी नेम, 3 कॉलम्स वी हैव टू प्रिंट, देन फ्रॉम स्टूडेंट, इस स्टूडेंट टेबल से, वेयर नेम लाइक R%, जिनका नाम R से स्टार्ट होता हो। ठीक है, और इनको ऑर्डर कैसे करना है, क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3 चीज यहाँ पे कंडीशन भी लगी हुई है, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द ऑर्डर, ओके, एंड द कॉलम नेम। ठीक है, लेट्स डू इट ऑन द SQL। अल्टरेशन आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, अब देखो हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय, हम एक कॉलम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहे वो हम उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर करें, चाहे वो न्यूमेरिक ऑर्डर करें। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिक तो हम लोग ऑर्डर ऑलरेडी कर रखा है, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सपोज ऑर्डर बाय नेम करते हैं या सिटी करते हैं, जैसा भी ठीक समझे। ठीक है, चलो नेम के थ्रू कर सकते हैं, ई नेम। ठीक है, अब देखो ये बी पहले आता है ना, ABCD आती है सबको, तो अकॉर्डिंग BFGR, देन उसी अकॉर्डिंग करते। और ये डिक्शनरी का जो ऑर्डर फॉलो करता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्टार्टिंग का, इट फॉलो द अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, जो डिक्शनरी का मेथड होता है ना, इट विल फॉलो एज इट इज। ठीक है, समझ में? अब हमने क्या किया, ऑर्डर बाय ई नेम। अब हमें सपोज इसे डिसेंडिंग में करना है, तो हम इसके आगे बस DESC लगा देंगे। ठीक है, लाइक दिस। अब देखो उल्टा हो गया। ओके, नाउ सपोज दैट इफ आई वांट टू यूज विद फंक्शन वेयर क्लॉज, वेयर नेम लाइक क्या है, राम और %। ठीक, तो क्या रहा है भाई, नेम लाइक ई नेम लाइक, सॉरी ई नेम। ठीक है, नाउ सेव, समझा? अब ये 2 नाम आए केवल। ठीक है, ऑर्डर डिसेंडिंग है ना। अब अगर इसको हम ऑर्डर बाय सिटी कर देते हैं, ठीक है, सिटी तो हो गया। ठीक है, ठीक, ठीक है, तो ऑर्डर बाय सिटी तो वही रहेगा, लेकिन अगर डिसेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है, तो सुल्तानपुर दिल्ली।
ठीक समझ में आया कि नहीं भाई? अब आगे चलते हैं। देखो इंसर्ट हम पढ़ा चुके हैं, इसको बस समझ लो तुम लोग। इंसर्ट इनटू टेबल हम बता चुके हैं, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल ये भी तरीका बता चुके हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना, व्हेन विल यू एंटर डेट, जब भी हम डेट एंटर करते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस वी विल यूज दिस फॉर्मेट, मींस वाई 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 डैश डी डी एंड एम, ठीक है। ईयर पहले रहेगा, फिर डेट रहेगी, फिर मंथ रहेगा। कंप्यूटर में इसी फॉर्मेट में एसक्यूएल डेटाबेस में एंटर होता है, ठीक है ना। तो और एक्सेप्ट टू वैल्यूज, मतलब एक वैल्यू होगी नल और सेकेंड वैल्यू इज इंटीजर। ये दोनों वैल्यूज को छोड़ के बाकी सब कुछ इन सिंगल कोट और डबल कोट में रहेगा, ठीक है। केवल दो वैल्यूज छोड़कर, वन इज नल एंड सेकेंड वन इज इंटीजर। कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी या कोई भी नल वैल्यू होगी, देन only you will not in the single quote, rather all the like see, it is a null value and these are the integer values. These are only not in single quote. Remaining all the values, it should be string, character, varchar, date and time, anything you will enter that will come accordingly. इतना समझ में आया? Now अब देखो, अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सपोज दैट अगर हम दो टेबल, ठीक है, हमने दो टेबल बना रखी है, ठीक है। अब एक टेबल का जो डेटा है वो सेकेंड टेबल में हमें कॉपी करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट, हमने क्या किया, जो भी हम इंसर्ट करते हैं, जैसे हमने लिखा कि अगर पहली वाली टेबल हमारी एक्स वाई जेड है और थर्ड वाली सेकेंड वाली टेबल जो हम क्रिएट करना चाहते हैं वो एबीसी, हम डेटा इसका सॉरी एक एक्स वाई जेड का एबीसी में डालना चाहते हैं, ठीक है। एंड व्हाट यू विल डू, यू विल यूज इंसर्ट इनटू एबीसी, ठीक। और फिर ब्रैकेट में जो होंगे, ब्रैकेट में जो भी हम लिखेंगे, ठीक है। बट वहां पे एक और चीज है, एक चीज बताता हूं कि अगर वैल्यू या तो कॉलम सेम हो, सारे कॉलम्स अगर एक्स वाई जेड के सेम है और एबीसीडी सेम है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो इंसर्ट इनटू, ठीक है, सॉरी एक चीज छूट गई, इंसर्ट इनटू एबीसी वैल्यूज, और यहाँ पे आप सिर्फ इतना लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं फर्स्ट टेबल की सेकंड टेबल में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, इफ द कॉलम्स आर सेम। इफ द कॉलम्स आर नॉट सेम, सपोज दैट आपके एक या दो कॉलम सेम है, ठीक है, समझा, अगर एक या दो कॉलम सिमिलर है, हमने यहाँ देखो लिखा हुआ है बोथ टेबल मस्ट हैव सेम कॉलम स्ट्रक्चर, ठीक है, समझा। अब अगर सपोज दैट एक या दो कॉलम सेम है जिनमें वैल्यूज डाल सकते हैं, सपोज दैट हमने कहा ई नेम और मान लिया सिटी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कैसे लिखोगे, स्टार की जगह क्या कर दोगे, ई नेम कॉमा सिटी, बस अब इन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज कॉपी होंगी, ठीक है। आप इसमें कंडीशन भी, जो भी क्वेरीज आपने आप पहले में लगा रहे हो, अभी अब हमने जितनी भी क्वेरीज सिखाई हैं, दैट दोज ऑल क्वेरीज यू कैन यूज इन दिस वे, समझा। अब यहाँ पे देखो सेलेक्ट स्टडी नेम फ्रॉम एडोलेसेंट, अब वही आप क्लास लेने हैं, कुछ आपने कंडीशन लगा दी कि सेकेंड कॉलम में सेकेंड वैल्यूज में वही रहनी है। चलो एक छोटा सा डेमो ले लेते हैं। सब कोई स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है, देखो insert into tb1 t value select star from tb1, it is correct। चलो इसका इश्यू मैं देख के बताता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक चीज मैं आपको बात कर बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है।
अब देखो ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। वो इंसर्ट सेकंड टेबल से लेके बताता हूँ क्या इशू आ रहा है। एंड आल्सो सेलेक्ट कॉलम बोथ ऑन बोथ द टेबल। ठीक है, मैं देखता हूँ। वैसे सही है, क्वेरीज में कोई क्वेरी में कोई गड़बड़ नहीं है, वर्जन में हो सकता है, मैं अपडेट करके देखूंगा। ठीक है, नाउ सी, अब डिलीटिंग रिकॉर्ड्स में देखते हैं। ठीक है, डिलीट रिकॉर्ड डिलीट कैसे करते हैं। सपोज दैट इफ यू वांट टू डिलीट अ रिकॉर्ड देन डिलीट फ्रॉम अ स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या होगा, ये सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, ऑल रिकॉर्ड। ठीक है, और डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी, अभी कंडीशनल डिलीट करेगा तीनों, जहाँ पे ग्रेटर देन 11 वैल्यूज होगी, लेस देन 9 सिटी इज अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप अनडिलीट करना चाहते हैं तो यू विल यूज रोल बैक कमांड। यू कैन टाइप रोल बैक, इट विल रोल बैक। ठीक है, यू कैन इशू कमिट कमांड टू रिकॉर्ड द चेंज परमानेंटली। अगर आप उस चेंज को परमानेंटली कर देंगे, तो अगर आप कमिट कमांड यूज कर देंगे देन इन दैट केस क्या होगा कि उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, उसके बाद यू कांट एग्जीक्यूट रोल बैक कमांड। ठीक है, आप देखते हैं भाई ये सब क्रिएट डिलीट। तो पहले एक बार टेबल देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1, हमारी पूरी टेबल आ गई। ठीक है, तो इन दिस सपोज दैट हम वो डिलीट करना चाहते हैं जिनका सिटी लखनऊ हो। ठीक है, जिनका सिटी लखनऊ हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टार फ्रॉम TB1 where city is equal to लखनऊ। तो सॉरी 8 लग गए, 4 नहीं है। where city is equal to लखनऊ, जिसमें स्टार नहीं लगेगा, सॉरी स्टार नहीं लगेगा। ठीक है, स्टार विल नॉट यूज, सॉरी। ठीक है, क्वेरी 2 अफेक्टेड। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो वैल्यूज डिस्प्ले हो गई जो यहाँ पे देखो, हर लखनऊ लखनऊ इज नॉट देयर। अब अगर हमें मल्टीपल क्वेरी लगानी हो, जैसे हमने कहा कि जिनका सिटी जिनकी जो वैल्यू नल हो, ठीक है, और या फिर ऐसा कर सकते हैं कि सपोज IP ID 884 हो और सिटी गोरखपुर हो। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं IP ID जो हो हर दो 12 उनकी एक ही है। ठीक है, सिटी दिल्ली लखनऊ डिलीट कर दिया, 2 बार टाइम था। चलो, इसका सिटी हमारे पास, हम 2 कंडीशंस कर लगाते हैं समझे। ठीक है, डिलीट फ्रॉम लखनऊ एंड लखनऊ तो हो गया, रहा नहीं। ठीक है, वेयर सिटी इज मुंबई एंड नेम लाइक, साथ में यूज कर सकते हैं, नेम लाइक परसेंट लाल। अच्छा, ई नेम। ठीक है, नाउ सी, अब एक रो अफेक्टेड, 1 रो इज अफेक्टेड नाउ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एक रो मतलब 1 ही कॉलम, एक ही ऐसी रो है जिसमें ऐसा है। ठीक है, तो मुंबई वहाँ पे है, और अब अगर यहाँ पे सिर्फ हम ई नेम लाइक लाल करते तो ओनली 1 2 3 रोज विल अफेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ,
ओनली वन रो विल अफेक्ट बिकॉज हमने डबल कंडीशन मुंबई के अकॉर्डिंग लगाई थी। ठीक है, समझ में आया? अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, नाउ अब हम कल पढ़ेंगे अपडेट कमांड्स, हम रिकॉर्ड्स को चेंजेस कैसे करते हैं, ठीक है, और टेबल में कैसे चेंज करते हैं ये। ठीक है, कल तुम्हारा ऑल्ट्रेशन डीएमएल और डीडीएल तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट डीडीएल एंड डीएमएल कमांड। ठीक है, सॉरी डीडीएल तो पर चल ही रही है, डीएमएल भी हम लोग बताएंगे और अपडेट करेंगे।